Welcome to Inside News. Let's get into the latest national updates. On the appointment of the new Chief Election Commissioner, CM Omar Abdullah says, as LOP, Rahul Gandhi has all the right to dissent. He is there to give a point of view. He is not there simply to agree with what the government suggests or proposes. This is the right that any member of the committee has, and Rahul Gandhi has exercised it. LOP has the right to show his disagreement. As leader of the opposition, he has every right to dissent. That's why he is there. He is there to give a point of view. He is not there simply to agree with what the government suggests or proposes. We've had this in the past as well. I remember at the state level in J&K when we had to appoint people to such constitutional bodies as the Information Commission and elsewhere. The then opposition leader was, I think on one or two occasions, they gave dissent notes. That's a right that any member of a committee has, and Rahul Gandhi exercised that right. It's fine. सर, लेकिन कहा गया है कि अभी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, चीफ जस्टिस को इसमें रखना चाहिए था। कांग्रेस ने असहमति जताई है कि इस तरह से जज उनका हक है, नहीं कराई। उनका हक है। ये कहाँ पे कहा गया है कि हुकूमत जो करती है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उसको मानना ही होगा। उसमें असहमति का इजहार करना ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हक है, अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। अब वो हुकूमत तक है, इसको माने ना माने। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई की बात है, वो चल रही है सुनवाई खत्म हो, अदालत का फैसला आ जाए। आपकी क्या राय है राहुल गांधी? मेरी राय से क्या लेना देना ना, मैं एक प्रदेश से ताल्लुक रखता हूँ, ये मरकज के लेवल का है। As leader of the opposition, he has every right to dissent. That's why he is there. He is there to give a point of view. He is not there simply to agree with what the government suggests or proposes. We've had this in the past as well. I remember at the state level in J&K when we had to appoint people to such constitutional bodies as the Information Commission and elsewhere. The then opposition leader was, I think on one or two occasions, they gave dissent notes. That's a right that any member of a committee has, and Rahul Gandhi exercised that right. It's fine. सर, लेकिन कहा गया है कि अभी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, चीफ जस्टिस को इसमें रखना चाहिए था। कांग्रेस ने असहमति जताई है कि इस तरह से जज उनका हक है, नहीं कराई। उनका हक है। ये कहाँ पे कहा गया है कि हुकूमत जो करती है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उसको मान। In the assembly, UP Chief Minister Yogi Adityanath says different dialects of UP, Bhojpuri, Awadhi, Braj and Bundelkhandi are getting respect in this house, and our government is also taking forward the process of forming different academics for all of these. And this house is not only for pure literary and grammar scholars. If someone cannot speak fluently in Hindi, then he should get the right to present his views in Bhojpuri, Awadhi, Braj or Bundelkhandi as well. What is that one should not speak Bhojpuri or Awadhi but advocate for Urdu? It is a very strange thing. The character of Samajwadis has become so double standards that they will send their children to public school and tell the children of others that there are no resources to study in the village school. This is their double standards, he said. उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है, और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है, और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले,
इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधि में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधि में इसका बुंदेलखंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल कैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधि का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आगे हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी अकेडमी का गठन कर रही है, अवधि अकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधि, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार को इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से। Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav says we have alerted the administration regarding the arrangements for all the devotees going to Mahakumbh. A large number of people are indeed travelling. People should avoid inconvenience and go to the railway station only with reserved tickets. I request all who are travelling by road through Rewa to be aware of all the traffic situations and make arrangements for their convenient journey. हम सबका सौभाग्य वर्तमान के दौर में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकारें काम कर रही है। मैं राज्य सरकार के नाते से कुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर के हमने सभी जिला कलेक्टर को, एसपी को, सभी प्रशासन के लोगों को अलर्ट करने का संदेश भी दिया है। ये बात सही है कि आवागमन में बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ऐसी भीड़ में अपने स्वयं को भी सावधानी रखना है। जिला प्रशासन भी आपकी व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन आगे जाने के मार्ग और रेलवे स्टेशन के ऊपर पर्याप्त टिकट लेकर के ही आप जाएं। आप असुविधा से बचें, पहले आरक्षण करा लें और खास करके मार्गों का आजकल रेलवे और बाकी विभागों से भी तालमेल रखें कि आने और आने जाने के मार्ग में कोई कठिनाई हो तो आप उसको अवॉइड करें। धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं को पक्का करने के बाद ही आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए चाकचौबंद व्यवस्था कर रही है। खास करके हमारे रीवा अंचल से बाय रोड जाने वाले लोगों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब अपने आने जाने के मार्ग की व्यवस्थाओं के बारे में पहले पर्याप्त इंतजाम लेके भी चले, साथ में कभी रुकना पड़े, जाम में परेशानी आए, छोटे बच्चे अगर है तो पर्याप्त दूध या अन्य प्रकार की व्यवस्था ले लें। यद्यपि जिला प्रशासन और बाकी सामाजिक संस्थाएं सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा रही है, लेकिन फिर भी एक निवेदन करना चाहूँगा, अब गर्मी का मौसम आ गया, ऐसे में कोई कठिनाई आपको नहीं होना चाहिए। हमारी सबकी चिंता है प्रत्येक यात्री जो यात्रा करने जा रहा है वो निर्बाध गति से यात्रा करे, आए और जाए और परमात्मा की दया से देव दर्शन का लाभ ले, गंगा जी का स्नान करे। लेकिन इन सारी बातों में जो हमको व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयाँ हैं उसका भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई। हम सबका सौभाग्य वर्तमान के दौर में
सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकारें काम कर रही है। मैं राज्य सरकार के नाते से कुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर के हमने सभी जिला कलेक्टर को, एसपी को, सभी प्रशासन के लोगों को अलर्ट करने का संदेश भी दिया है। ये बात सही है कि आवागमन में बड़ी संख्या में बड़ी भीड़ आ रही है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ऐसी भीड़ में आपने स्वयं को भी सावधानी रखना है। जिला प्रशासन भी आपकी व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन आगे जाने के मार्ग और रेलवे स्टेशन के ऊपर पर्याप्त टिकट लेकर के ही आप जाएं। आप असुविधा से बचें, पहले आरक्षण करा लें और खास करके मार्गों का आजकल रेलवे और बाकी विभागों से भी तालमेल रखें कि आने और आने जाने के मार्ग में कोई कठिनाई हो तो आप उसको अवॉइड करें। धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं को पक्का करने के बाद ही आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए चाकचौबंद व्यवस्था कर रही है। खास करके हमारे रीवा अंचल से बाय रोड जाने वाले लोगों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब अपने आने जाने के मार्ग की व्यवस्थाओं के बारे में पहले पर्याप्त इंतजाम लेके भी चले, साथ में कभी रुकना पड़े, जाम में परेशानी आए, छोटे बच्चे अगर है तो पर्याप्त दूध या अन्य प्रकार की व्यवस्था ले लें। यद्यपि जिला प्रशासन और बाकी सामाजिक संस्थाएं सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा रही है, लेकिन फिर भी एक निवेदन करना चाहूँगा, अब गर्मी का मौसम आ गया, ऐसे में कोई कठिनाई आपको नहीं होना चाहिए। हमारी सबकी चिंता है प्रत्येक यात्री जो यात्रा करने जा रहा है वो निर्बाध गति से यात्रा करे, आए और जाए और परमात्मा की दया से देव दर्शन का लाभ ले, गंगा जी का स्नान करे। लेकिन इन सारी बातों में जो हमको व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयाँ हैं उसका भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई। हम सबका सौभाग्य। Congress President Harshvardhan Sapkal says not only the history of Maharashtra but the whole nation is incomplete without Chhatrapati Shivaji Maharaj. He is a guide for all of us. Today I have come here to pay my tribute to him. केवल महाराष्ट्र का नहीं तो देश का और विश्व का इतिहास शिवाजी महाराज का नाम लिए बगैर पूरा हो नहीं सकता। और अर्थात महाराष्ट्र तो शिवाजी महाराज की आन बान और शान है, और तो जो शिवाजी महाराज की जो प्रेरणा है हम सबके लिए मार्गदर्शक है। और उसी शिवाजी महाराज को यहाँ नतमस्तक होते हुए उनके वसूलों पर, उनके विचारों पर चलने का कर्मठता के साथ संकल्प करने हेतु आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आज आप कारवार संभालें, आपकी असली लड़ाई किसके साथ? छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंद स्वराज को लेकर हम आगे जाने वाले हैं। केवल महाराष्ट्र का नहीं तो देश का और विश्व का इतिहास शिवाजी महाराज का नाम लिए बगैर पूरा हो नहीं सकता। और अर्थात महाराष्ट्र तो शिवाजी महाराज की आन बान और शान है, और तो जो शिवाजी महाराज की जो प्रेरणा है हम सबके लिए मार्गदर्शक है। और उसी शिवाजी महाराज को यहाँ नतमस्तक होते हुए उनके वसूलों पर, उनके विचारों पर चलने का कर्मठता के साथ संकल्प करने हेतु आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आज आप कारवार संभालें, आपकी असली लड़ाई किसके साथ? छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंद स्वराज को लेकर हम आगे जाने वाले हैं। केवल Union Minister Piyush Goyal emphasized the strong historical relations between India and the Qatar during the India-Qatar Joint Business Forum, stating that both countries are committed to expanding their economic ties in new technologies, AI and other emerging sectors. Speaking at the forum, Goyal said the relations between India and Qatar are historical and full of possibilities. Yesterday, the Prime Minister gave message of friendship and brotherhood by welcoming Amir to the state of Qatar. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani at the airport. He highlighted that in the past 15 to 20 years, trade related to energy resources has continued to grow between the two nations. However, he also stressed that the future will see both countries expanding the partnerships, include innovative technologies and other sectors, adapting the changing global context. Now, both countries are committed to increasing their relations according to new technology, AI and the changing world context. I see the possibility of large-scale growth in both trade and investment sectors in the future, Goyal added. The business forum comes amid strengthening diplomatic ties and economic engagements between India by enhancing investment and cooperation in strategic sectors. भारत और कतार के बीच संबंध ऐतिहासिक भी है और संभावनाओं से भरे हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक
मित्रता का, एक भाईचारे का संदेश हिज हाइनेस आमिर ऑफ कतार को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करके दिया है, मैं समझता हूं उसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। भारत और कतार के बीच अब नए विषयों पर संबंध कैसे बढ़े। ट्रेडिशनली पहले ऐतिहासिक तरीके से देखें तो गत 15-20 वर्षों में साधारणतः ऑयल और गैस और या एनर्जी से संबंधित व्यापार बढ़ता रहा। अब दोनों देश नई टेक्नोलॉजीज पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, विश्व में बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अपना संबंध बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में व्यापार हो या निवेश हो, दोनों में भारत और कतार के बीच बड़े पैमाने पे वृद्धि होने की संभावना मुझे दिखती है। भारत और कतार के बीच संबंध ऐतिहासिक भी है और संभावनाओं से भरे हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मित्रता का, एक भाईचारे का संदेश हिज हाइनेस आमिर ऑफ कतार को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करके दिया है, मैं समझता हूं उसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। भारत और कतार के बीच अब नए Additionally, the Tejashwi Yadav stated those who used to abuse Karpuri Thakur when he implemented reservation look at his power today. Those who used to criticize him are now giving him Bharat Ratna. This is the true strength of socialism. Similarly, those who are abusing Laluji today will in the future also give him Bharat Ratna. जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया, आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये असली ताकत, ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है, जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं और हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी कुछ लोग भारत रत्न देने का काम भर्ती गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण। Chhattisgarh Deputy Chief Minister Arun Saw remarked the budget session of the Legislative Assembly is about to come. This time the budget session is starting on February 24 and it is going to be very important. The government has made all its preparations. हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है और जो विधानसभा की कार्यसूची और कार्य नियम है उसके हिसाब से माननीय सदस्यों के प्रश्न आदि सब होंगे। हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। Kumar Singh stated the current year's defence budget was 6.21 lakh crore rupees, which will increase by 9.5% to 6.81 lakh crore rupees in 2025 to 26. It's very obvious that the defence industry in India is at the cusp of a massive expansion. The current industrial ecosystem of India, which includes 16 defence PSUs, 430 licensed companies and around 16,000 MSMEs, is the pillar of this expanding industrial base.
Our focus must be on reducing entry barriers for new players and technologies, ensuring that our defence industrial ecosystem becomes adaptive, agile and capable of responding quickly to the changing nature of future warfare as seen in recent geopolitical conflicts. As you are aware, the current year's defence budget was 6.21 lakh crores, which will go up by 9.5% to 6.81 lakh crores in 25-26. The capital outlay will go up from 1.8 lakh crores, about 21 billion US dollars, and we should be spending over the next decade something between 20 to 25, perhaps even $30 billion per annum as part of our modernization initiative. Out of this capex budget, 75% is earmarked for procurement from domestic sources, and in turn 25% of this is earmarked for the domestic private industry. Of course, they can get even more. Relaxation in our FDI policy and in industrial licensing procedures are other elements that will propel the growth in our domestic industry. Defense industry, I meant. As you are aware, the total value of domestic production in India has reached 1.27 lakh crores in 23-24, while our exports had increased to 21,000 crores, almost a 30x jump in the last 10 years. It's very obvious that the defense industry in India is at the cusp of a massive expansion. The current industrial ecosystem of India, which comprises 16 defense PSUs, 430 licensed companies, and around 16,000 MSMEs, are the pillars of this expanding industrial base. Our focus has to be on reducing the entry barriers, as I had mentioned earlier, for new players and for new technologies, so that our defense industrial ecosystem becomes adaptive, agile, and capable of responding quickly to the changing nature of future warfare, as we have seen in recent geopolitical conflicts. As you are aware, the current year's defense budget was 6.21 lakh crores, which will go up by 9.5% to 6.81 lakh crores in 25-20. ADG Operations Sanjay Anand Rao Latkar stated a meeting was held today with the SP of the concerned district and the RPF officer of the railway districts of the state. The instructions were reiterated that all departments should make joint efforts and ensure proper arrangements so that passengers travelling from various railway stations for Kumbh Mela can do so smoothly. Instructions were given to make thorough preparations to ensure no incidents occur in the coming 8 days and passengers do not face any inconvenience. क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई? राज्य के रेल जिलों के एसपी, संबंधित जिला के एसपी, उपायुक्त तथा आरपीएफ के पदाधिकारी के साथ आज एक बैठक की गई और कुंभ मेला के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों से जो यात्री जा रहे हैं उनका आवागमन कैसे सुचारू रूप से हो जाए, इसके लिए समुचित ढंग से सभी विंग्स को मिलके अच्छे प्रयास करने चाहिए और व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इसके लिए निर्देशों को दोहराया गया है। एक दूसरे से किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं यह भी साझा जानकारी की गई और उसके अनुरूप योजना बनाकर आने वाले अभी 8 दिनों के दौरान कहीं पर किसी प्रकार की घटना ना हो, किसी प्रकार की कोई आवागमन में असुविधा ना हो, यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए समुचित तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। और कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म पर काफी देर लगे हैं, इसको लेकर भी कोई डायरेक्शन के इसमें मुख्यतः जीटी रोड पे धनबाद है, जो ग्रैंड कॉर्ट का रेलवे स्टेशन है, गोमो है, बोकारो, रांची, हटिया, पलामू, गढ़वा आदि स्थानों पर और गिरिडीह से बूथ के दिन जो एक ट्रेन चलती है तो उसमें गिरिडीह जिले में भी और जसीडीह देवघर में विशेष तौर पर भीड़ होने की सूचनाएं मिल रही है और वैसे स्थानों पर
बिना टिकट अगर कोई आ रहे हैं या प्लेटफॉर्म टिकट लिए बिना प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो रेलवे प्रशासन से यह अनुरोध किया गया है कि इसमें सीनियर डीएससी भी आज उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि आप आरपीएफ के और आपके प्रशासन के सहयोग से इनकी समुचित चेकिंग की व्यवस्था करें ताकि इस प्रकार से यात्री वहां नहीं जाए। किसी प्रकार के ट्रेन अगर कैंसिल की जा रही है, समय में परिवर्तन किया जा रहा है तो इसकी समय रहते हुए सूचनाएं सभी लोगों तक प्रसारित हो जाए। और प्लेटफॉर्म पर भीड़ रोकने के लिए होल्डिंग एरिया स्टेशन के बाहर कराने के लिए, और जब वह ट्रेन आएगी तो क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई? राज्य के रेल जिलों के एसपी, संबंधित जिला के एसपी, उपायुक्त। Odisha Deputy Chief Minister Kanakvardhan Singh Diu responded to former CM Navin Patnaik's statement on the state budget, saying, "It won't be appropriate for me to comment on his statement. He won't find anything this government is doing as right. He did nothing for 24 years. The CM has focused on every sector in the budget. The way CM presented the budget inside the State Assembly, you might have noticed, no other CM has ever presented the budget for more than 2.5 hours in this assembly. He has included every section of society in this budget." हालांकि अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने इस बजट की आलोचना की है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके विषय में मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उनको तो कोई चीज जो ये सरकार कर रही है उनको सही नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने 24 साल में जब कुछ किया नहीं और आज वो दूसरी तरफ बैठे हैं, तो उनको जो ये सरकार करने की कोशिश कर रही है लोगों के लिए, उन्होंने जो इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा है, ये आपने अगर देखा होगा द बॉडी लैंग्वेज, जो जितने विधायक जितने कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन विधानसभा के अंदर उनका रिएक्शन क्या था, इट वाज वेरी पॉजिटिव। उनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी। खाली पूर्व मुख्यमंत्री जी को क्रिटिसाइज करना है और आके करेंगे। लैड भी बढ़ाया गया। देखिए, वो खाली एमएलए लैड नहीं बढ़ाया गया है। आप देखिए हर सेक्शन में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो आपके डब्ल्यूडीसी हो, नॉर्थ उड़ीसा डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो, साउथ उड़ीसा डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो, हर सेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है और उसके तहत उन्होंने योजना में उसको इंक्लूड किया है। महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, आप देखिए तीर्थ करने के लिए गरीबों को महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लाने की बात भी उसमें कही गई है। भोग फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात की है, हमारी अस्मिता की बात कही गई है। और अगर आपने देखा होगा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने आज बजट की पेश की है विधानसभा में, आप सबने देखा होगा इससे पहले कभी किसी शायद मुख्यमंत्री ने 2.5 घंटे से अधिक की बजट की उपस्थापना नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने इस बजट में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कवर किया। सर, एक आखिरी सवाल सर, आप हालांकि अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने इस बजट की आलोचना की है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके विषय में मेरा कोई टिप्पणी करना। That's all for Inside News. Keep watching CVR English.